Hello students, welcome to science class. As in previous chapter we have studied about force, but I think a little bit of things are left in water pollution. So within one or two videos I will complete this water pollution, and later on I will continue with your fourth chapter. So what is water pollution? As we have studied that many microorganisms or toxic chemicals which are released from factories are decomposes in a river is known as water pollution, and that microorganism toxic substance which are found in water is known as water pollutant. Okay, so you have also studied how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing, etc. This means that we are adding some materials to the water which spoils its quality and change its smell and color of water. Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. Silt is a substance, they are neither hard or neither these are very soft. वो एक hard और soft के बीच का material होता है, मतलब बहुत ही मतलब मोटे हार्ड मटेरियल से थोड़ा सा सॉफ्ट, यू कैन से दैट, गेट मिक्स्ड विथ वाटर, मतलब वो इजिली मिक्स हो जाता है वाटर से. द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड. द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट वाटर्स आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट. वो सब्सटेंस जो वाटर को पोल्यूट कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूटेंट्स. वाटर पोल्यूटेंट्स. ओके. So how does water get polluted? How does water get polluted? So Ganga is one of the most famous rivers of India. It sustains most of northern, central and eastern Indian population. Millions of people depend on it for their daily needs and livelihood. However, recently studied by the World War Fund of Nature found that Ganga is one of the 10th most endangered river in the world. The pollution level have been rising for many years. So मतलब कि आपने देखा होगा कि गंगा में, रिवर में सभी लोग नहा लेते हैं और उसको पोल्यूट करते हैं. पोल्यूट कैसे होती है कि आप नहाए हो, सोप है, तो वो सोप क्या हो रहा है? वो सोप रिवर में ही तो जा रहा है. तो ह्यूमन बीइंग्स भी नहाते हैं, बहुत लोग अपने एनिमल्स को भी नहला देते हैं. तो मतलब कि हर तरफ से वेस्ट कहाँ कलेक्ट होता है? गंगा में होता है. जो फैक्ट्री से रिलीज हो रहा है, जो ह्यूमंस कर रहे हैं, जो एनिमल्स कर रहे हैं, सारे ही के सारे जाके रिवर में जा रहे हैं. तो इन सब से भी रिवर जो है वो पोल्यूट हो रही है. गंगा एक्शन प्लान, ठीक है. व्हाट इज गंगा एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान was given by Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi on 14th January 1986. Okay, and it was announced on 1985. Announced and it was announced on 1985. Okay, and it was announced on 1985 by Ministry of Environment and not environmental, it's Environment and Forest. It's Environment and Forest. Okay, it was given by Rajiv Gandhi on 14 January, that is 1986, and was announced on 1985 by Ministry of Environment and Forest. It was first announced by Ministry of Environment and Forest. So it's what are the main objective to protect river? मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवर को हजार्डियस सब्सटेंस से बचाने का. ओके,
So the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga, that is NMCG. That is NMCG. What does it mean? What does this mean? National Mission for Clean Ganga. National Mission for Clean Ganga. Okay. सो अब रिवर्स में क्या होता है, अब जैसे कि ये इतने हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो रिवर्स में जाके कलेक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें बहुत तरह की वाटरबोर्न डिजीज हो जाएगी. वाटरबोर्न डिजीज कौन कौन सी है? जॉन्डिस, टाइफाइड, कॉलरा. अब ये सब किससे होगा? ठीक है, ये सब होगा वाटर से. और फर्दर we can see that डायरिया इज द मोस्ट कॉमन डिजीज जो कि वाटर पोल्यूशन से होती है. ठीक है. अब एज इट सेज दैट गंगा विल बी क्लीन बाय 2019. इट मतलब एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो गंगा है उसको क्लीन करेंगे बाय 2019 से, जो कि अब एक्सटेंड हो गया है 2020 तक. मतलब एक प्रीवियस नोटिस दी गई थी. ठीक. और क्या था? नमामि गंगे जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था बाय NMCG. ठीक. Further on, many industries discharge harmful chemicals into rivers and streams, causing the pollution of water. Examples are oil refineries, paper factories, textile and sugar mills, and chemical factories. These industries cause chemical contamination of water. The chemical release include arsenic, lead and fluorides, which led to toxicity in plants and animals. अभी जो इतने सारे वेस्ट हो रहे हैं, आर्सेनिक, लेड हो रहे हैं और फ्लोराइड्स हो रहे हैं. ठीक है. ये क्या आर्सेनिक, लेड और ये सब क्या करता है? फ्लोराइड्स वगैरह क्या करता है? फ्लोराइड क्या करता है? टूथ डिस्कलरेशन करता है. टूथ जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पानी जो आता है वो कभी कभी बहुत ही गंदा होता है, जिसकी वजह से आपके जो दांत होते हैं वो येलो इन कलर हो जाते हैं, और समटाइम्स इट टर्न्स इनटू ब्राउन कलर. किससे होता है? फ्लोराइड्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर. ओके. और इससे क्या होता है? टूथ डीके भी हो जाता है. ये प्लांट्स एज वेल एज प्लांट्स और एज वेल एज एनिमल्स दोनों के लिए खतरा होता है. कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो मतलब उसमें भी किसी तरह का जब केमिकल्स वाटर पड़ता है, जिसमें मतलब वाटर में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से प्लांट भी विल्ट हो जाता है, प्लांट भी जल जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर. Further on, the soil is also affected by impure water, causing changes in acidity, growth of worms, etc. Soil भी उससे water की जो गंदगी होती है उससे soil खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जो soil की condition होती है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है. सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म, जो अर्थवॉर्म प्रेजेंट होते हैं, जो सॉइल को क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं. उसकी वजह से, केमिकल की वजह से सॉइल भी खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटीज, केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर, दे ऑल्सो अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. उसकी एसिडिटी भी खराब कर देते हैं. The importance of pesticide and weedicides for the protection of crop. However, all these chemicals dissolve in water and are washed into water bodies from the fields. They also seep into ground to pollute groundwater. अब जैसे कि मान लो कि कोई भी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है. ठीक है. मतलब कि वाटर जो आके ग्राउंड में गिर रहे हैं, बारिश हो रही है, या मान लो आपने कहीं पे इंडस्ट्रीज से जो वाटर निकल के ग्राउंड में आता है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सरफेस को खराब करेगा. नहीं, वो ग्राउंड के नीचे जाके अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देता है. ठीक है. This is caused by excessive quantities of chemicals which get washed from the field. These act as nutrient for algae to flourish. Once these algae die, they serve as food for decomposers like bacteria. A lot of oxygen in the water body gets used up. These results in a decrease in the oxygen the level which may kill aquatic organism. अब वाटर जो पोल्यूट होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं,
पोल्यूट करते हैं, मतलब कि बीमार करते हैं या उनको कोई डिजीज से अफेक्ट करते हैं, वो जब वाटर में घुसते हैं तो जो वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको भी वो पोल्यूट करते हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, फाइन। Sometimes untreated sewage is thrown directly into rivers. It contains food waste, detergent, microorganism, etc. Okay, water contaminated with sewage may contain bacteria, virus, fungi, parasites, and they cause like cholera, typhoid, and jaundice. What is potable water? How is water purified? Potable water क्या है? Potable water is water which is pure for drinking, which is suitable for drinking, is known as potable water. So what is potable water? Potable water is the water which is suitable for drinking. Water which is suitable for drinking is known as potable water. Okay. As you have seen, various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging into water bodies. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it household. तो ऐसे बहुत सारे ओल्ड मेथड्स भी हैं, अब तो बहुत सारे फिजिकल केमिकल मेथड बहुत सारे आ गए हैं जिससे वाटर जो है वो क्लीन होते हैं। पुराने मेथड्स कौन थे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में जो बहुत पहले के टाइम पे जब पानी आता था तो उसमें कपड़ा लगा के, ठीक है, कपड़ा लगा के उसको वाटर को क्लीन कर दिया जाता था। ठीक है, कपड़ा लगा के वाटर को प्यूरिफाई किया जाता था। और भी बहुत सारे ऐसे पुराने मेथड थे। ठीक, और अभी कौन से, अभी जो एक लेटेस्ट में जो और हाँ, ये तो कपड़े वाला मेथड हो गया जो पुराने के टाइम पे यूज होता था। और एक मेथड है वाटर को जो सबसे बेस्ट होता है, मतलब कि मतलब ये माना जाता है कि वाटर को जब आप बॉईल करोगे तो उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं वो सारे मर जाएंगे। तो एक अभी जो लेटेस्ट मेथड है वो क्या है, क्लोरीनेशन है। ठीक, क्लोरीनेशन है और उसमें क्या होता है, क्लोरीनेशन से भी जो वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं, जो न्यू मेथड है इसमें 20,000 गैलन ऑफ वाटर में कितनी टैबलेट्स डालते हैं, इसमें डालते हैं 4 क्लोराइड टैबलेट्स। ठीक है, 4 क्लोराइड टैबलेट एंड 1 गैलन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3.78 लीटर्स। ओके, 3.78 लीटर्स। अब इसमें देखो, इसमें जो इसमें आप 20,000 गैलन वाटर में सिर्फ जो है 4 क्लोराइड टैबलेट्स डाल सकते हो। ठीक है, और 1 गैलन वाटर किसके इज इक्वल टू होता है, 1 गैलन वाटर इज इक्वल टू 3.78 लीटर्स। ठीक, और आप बहुत ज्यादा क्लोराइड टैबलेट्स भी नहीं डाल सकते हो। इसकी वजह से भी ये भी एक पॉइजनस, एक हजार्डियस कह सकते हो कि ये भी बहुत ज्यादा मतलब सही नहीं है। बहुत ज्यादा क्लोराइड टैबलेट भी इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब क्लोराइड टैबलेट्स कितनी बड़ी होती है, एक क्लोराइड टैबलेट जो है वो कम से कम 3 to 4 इंच होती है। ठीक है, 1 क्लोराइड टैबलेट इज ऑफ 3 इंच और 4 इंच। ठीक है, अब पहले के टाइम पे क्या मतलब, अभी भी आपने देखा होगा जो रोड में जो ऐसे रोड साइड जो बड़ी बड़ी ऐसे टैंक्स होते हैं। ठीक है, टैंक्स होते हैं, उसमें इन्हीं सब चीजों से ट्रीट किया जाता है वाटर में। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो घरों में पानी आता है उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, तो वो किस चीज की होती है, वो भी इन्हीं सब चीज की होती है। उसमें कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर भी डाला जाता है जिसकी वजह से ये सारी स्मेल आती है। दे आर नॉट बैड, दे आर गुड। ओके, जिससे वाटर की जो प्योरिटी है उसको सही किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। ठीक, व्हाट कैन बी डन,
Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. Water treatment plants should be installed in all industrial areas at our individual levels. We should consciously save water and not waste it. Reduce, reuse and recycle. तो water को हमें waste नहीं करना चाहिए. We should reduce, reuse and recycle the water. तो हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस में कर सकते हैं कि व्हेन यू ब्रश योर टीथ यू शुड स्टॉप द टैप, यू शुड क्लोज द टैप, जिससे कि जो वाटर है वो जबरदस्ती का फ्लो ना हो. ठीक है. अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो अननेसेसरी 3-4 बार दिन भर नहाते हैं. ठीक. तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए. शुड रिड्यूस द यूज ऑफ वाटर लाइक दिस ऑल्सो. अब अननेसेसरी ये नहीं कि बस आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आप वाटर को इनटेक कर रहे हैं. नो, आपको एक लिमिटेड जो एक वाटर पीने की कैपेसिटी होती है, जो एक मिनिमम वाटर पीना चाहिए 4 to 5 लीटर्स, बस आप उतना ही, एक्सेस मत नहीं पीना चाहिए. एंड रियूज, वाटर को आप रियूज कैसे कर सकते हो कि लाइक आप वॉश कर रहे हो क्लोथ्स को. ठीक है. अब उसमें से जो पानी बच रहा है मतलब कि जो वॉशिंग क्लोथ आप कर रहे हो उसमें से जो पानी निकल रहा है क्लोथ्स को धोने के बाद डिटर्जेंट वाला, उससे भी आप फ्लश में यूज कर सकते हो. ठीक है. वॉशरूम में एक्सेट्रा में यूज कर सकते हो. एंड वाटर रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज कि जैसे कि बारिश हुई, आपने अपने गार्डन में पानी को रख दिया. ठीक है. एक मतलब बड़े से बकेट को रख दिया जिसमें वाटर कलेक्ट हो रहे हैं. ठीक. तो उसको भी आप फर्दर किसी भी कभी कभी तो वो मतलब ठीक ठाक रहता है, उसको भी आप वॉशरूम एक्सेट्रा में यूज कर सकते हो. जो फिल्टर का वाटर होता है, जो वेस्ट वाटर निकलता है फिल्टर से, आरओ वगैरह का, उसको भी आप यूज कर सकते हो. इस तरह से इन मेनी अदर वेज, इन मेनी सेवरल वेज यू कैन सेव द water by reducing, reusing and recycling it. Okay. By reduce, reuse and recycling it. Okay. Can we think of creative ideas like reusing water used for washing for other household tasks? For example, water used for washing vegetables may be used for water plant in the garden. Yes, जो आप अपने घरों में जो सब्जियां वगैरह धोते हो उससे जो पानी बचता है उसको आप प्लांट में आप उसको प्लांटिंग कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो उससे. ठीक है. Pollution is no longer a distant phenomenon. It is affecting the quality of our daily lives. Unless we all realize our responsibility and start using environment-friendly process, the very survival of our planet is in danger. तो बस यही है कि आपको वाटर को प्रोटेक्ट करके रखना है सेवरल वे से, जो हमारे वाटर को इफेक्ट कर रहे हैं और उनको बचाना है, जो हमारे प्लानट के लिए जो है एक डेंजर चीज है. ठीक है. So as we have finished this water pollution. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज प्योर एयर एंड पॉल्यूटेड एयर? प्योर एयर क्या है? जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है. ये क्या है? प्योर एयर. पॉल्यूटेड एयर वो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हजार्डियस सब्सटेंस होते हैं. ठीक है. और हमें पॉल्यूटेड एयर से हमें अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, ये सारे हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है. ये सारे क्या होते हैं? पॉल्यूटेड एयर होते हैं. और ये है हमारा प्योर एयर का एग्जाम्पल. ठीक. और ये सारे क्वेश्चन है जो मैं 1-2 बता देती हूँ, फर्दर आप आगे एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा. अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस. ओके. In different ways in which water get contaminated. Question number 1, what are the different ways in which water get contaminated? What are different ways in water get contaminated? Microorganism, toxic substances, example lead,
arsenic lead, नहीं वही मतलब lead, and detergent, ठीक है, detergent. These are several examples of water pollution. Now guys, your homework is how can you reduce air pollution? How can you reduce air pollution? And next one, is acidic rain. Acid rain. Okay, these are your homework. How can you reduce air pollution and acid rain? Okay, thank you class, we'll meet you tomorrow.